So this is the TGA and this is the DSC. Okay. So as far as the sessions which we have attended earlier, so this is the thermogravimetric analyzer. So the instrument is used for study of mass loss with temperature or with time. Okay. So on one axis you will plot the temperature, and on another axis you will you can plot this mass loss. Okay, or mass percentage, or even mass also. Okay, in mg or this. Okay. In DSC same. Okay, you can plot the heat flow versus temperature. Okay. So different. This instrument will give you the mass loss parameters, and this will give you the heat flow parameters. Okay. So depending upon your sample and your nature of study, you will have one your TGA also or DSC. Okay. So now we will talk in detail of this one. So as per the session, as per the previous sessions, as you know, for getting the analysis of any material, okay, you have to first know its TGA first. Okay. Why it is there? You have to go, like for DSC, you have to go to some final temperature. So that final temperature will be driven by TG. ओके. अब आप एक मटेरियल से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे जाके डिकम्पोज होने वाला है. ओके. उस डिकम्पोज वाले टेम्परेचर तक आपको डीएससी में नहीं जाना है. ओके. तो बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू दैट तक, उस डिकम्पोजिशन टेम्परेचर तक ओके आपको नहीं जाना है डीएससी में. ओके. इन टीजे यू कैन गो, इन नॉट इन डीएससी यू कैन नॉट. ओके. सो बिकॉज द रीजन इज, अगर आप डिकम्पोजिशन टेम्परेचर तक जाएंगे डीएससी में हर बार, ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट डिकम्पोजिशन and because of the flux gases which is releasing from your sample, the thermocouple of the DSC can go bad. Okay, and that is a very very costly thing. So obviously, so yeah, for that. दोनों का जो फर्नेस है वो अलग है. इसका फर्नेस इज इंडक्शन टाइप. ओके, जैसे घर में हीटर होता है. ठीक है. इसका जो फर्नेस है वो सिल्वर का बना हुआ है. सिल्वर विल गेट रिएक्ट टू दैट, उसका ऑक्साइड बनेगा. डीएससी के अंदर में आप पैन के अंदर में रख के हीट करते हो, लॉजिकली वो उससे भी नहीं हार्म नहीं होना चाहिए. ओके. लेकिन जब आप डिकम्पोज करते हैं किसी भी टेम्परेचर को, तो जो उसका जो एल्यूमिनियम का जो पैन है, इट विल रिएक्ट विद दैट सिल्वर का सेल. ओके. एंड देन सिल्वर का सेल विल गेट दैट ऑक्साइड. अगर आपने ऑक्सीजन चलाया तो ऑब्वियसली सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर चलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड कुछ बनेगा, तो वो उसको बर्बाद कर सकता है सिल्वर के सेल को. दैट्स वाई, बिकॉज इट्स अ वेरी कंडक्टिव इन नेचर, दैट्स वाई इट विल गो. इसके अंदर में जो फर्नेस है दैट इज अ कंडक्टिव फर्नेस. तो कंडक्टिव फर्नेस में यू कैन हीट अप टू एनी टेम्परेचर. यस, बिकॉज केवल प्लैटिनम की बात नहीं है, प्लैटिनम का इसको भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली प्लैटिनम विल गेट मोर ऑफ द कॉस्ट. नो, सी सिल्वर इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उससे ज्यादा अच्छा गोल्ड है. हम गोल्ड का सेल बना सकते हैं, बट दैट कॉस्ट विल बी सो मच कि इंस्ट्रूमेंट ना तो हम बेच पाएंगे ना कोई खरीद पाएगा ऑब्वियसली. ओके. प्लैटिनम गोल्ड से महंगा है, सो यू कैन सी. Yes, you can. There is one instrument called SDT, or simultaneous DSC and TGA. Okay, so in that instrument you can do the both of the things. Okay, but literally I can say that is a high temperature TGA actually. Okay, so that instrument is defined as high temperature TGA with a bonus DSC signal. Okay, so the DSC signal of that instrument is not that much accurate. Okay, because see in this one there is a horizontal balance, and that horizontal balance we are using as a silver ka cell also. Okay, because the transducer in that, it's a beam made up of platinum and ceramic is coated on that. Okay, so the heat flux or the heat flow which is measured by that horizontal beam is not that much accurate. Okay, so yeah, you can have an idea, but it will be not very much accurate. Okay, so this is the TGA equipment. So the microbalance is inside this one. You can see the white color, that is the thermocouple, and this is the platinum ka hand-on wire. Okay, which is hanging like this. Okay, this is the furnace, IR furnace. In this particular instrument, this is the IR furnace. Infrared furnace is there. So there are four infrared bulbs inside. Okay, so when you will get the program and you will give a command to it that heat it to 1000 degrees Celsius or 800 or any temperature which you want. So the intensity of the cell will go to that extent, and then it will heat. Okay, so there are three different kind of furnaces are there. First is the normal furnace or standard furnace. It can go up to 1000 degrees Celsius. EGA furnace can go up to 1000. This one can go to 12. Okay. Okay.
Yeah, and before that you can see this one, the purge and the air tube. Okay, from this purge your gas will come. Okay, so both of the equipment, nitrogen is necessary. Okay, so the first gas in every equipment, whether it is a simultaneous DSC and TGA or DSC, the first gas will be nitrogen always. Okay, the golden rule is अगर nitrogen नहीं है तो instrument नहीं चलेगा. Okay, like that. Nitrogen is required to keep the environment as inert as possible. Okay, so whenever you are doing any sample, whether it's a polymer kind of sample or biomaterial or biomass or anything, okay, we have to make the environment inert. So that's why nitrogen is required. Okay, and when you heat the sample inside the pan, so the like a fuel, so the flue gases of that sample. Where is the pan? Inside, you can see. This is the pan. Okay, yeah, I will show it to you. Okay, so if you are heating the sample, so the flue gases of the sample can go inside the balance also. So there is a supply inside the balance of nitrogen. Okay, उसके अंदर में जो भी मटेरियल है, whether it is copper or steel or or something, that cannot be got corroded with that. Okay, so that's why there is a continuous supply of nitrogen inside the TG का balance. Okay. सर एक डेमो चलाते नहीं थे साल खासे तो चलेंगे वो भी चलेंगे. सैंपल इसमें ना Yes, sample is full. Okay, so there are different kind of pans and different kind of samples inside. Okay, so this is 100 ton micron, 10 micron. Okay, so depending upon your quantity and your sample ka nature, your different pans can be there. Okay, so first one is platinum HT, that is platinum high temperature. Okay, so that pan can go up to 1200 degrees Celsius. Okay, this is the platinum pan, only platinum. Okay, so this can go up to a temperature of 600 degrees Celsius. Okay, and then there is different another pan called ceramic pan. It can go also up to 1200 degrees Celsius. Okay, difference between platinum HT1, it can go to 1000 obviously. This is platinum only. Okay, so the why it cannot go to 1000? Actually it can go, but we are not recommending it. Okay, see, बहुत ज़्यादा high temperature पे, because the wire is also made up of platinum. This is also platinum. It will get fused. So that's why we have to make another platinum HT वाला pan. तो उसमें क्या है? उसमें यहाँ पे coating है. कौन से बैच है तो इतना ज्यादा लोग भीड़ हो रहा है ना फिर तो उससे क्या है See, this is a platinum HT actually. ये कैल्शियम ऑक्सलेट. सी ये हुक पे आप देख रहे हैं कोटिंग कर ली है. कोटिंग किया हुआ है, रेडियम का कोटिंग है. ओके, so because of this it can go to 1000 degrees Celsius, so it will not get fused into the platinum wire. Okay, and the third one is ceramic pan. Okay, so how we do the sample This from is the there? pan holder, ना? This Sorry? it is a pen holder, see. ये ऑटो सैंपलर है. ओके, क्वेश्चन Yeah. एक क्लीनिंग का प्रोसेस जब हम डिस्कस कर रहे थे सो वी हीटेड दैट यस प्लैटिनम यस यस यस. कंटेनर हाँ. सो इट विल नॉट डिफॉर्म दैट No, no. It's a platinum one, so it will not deform. Actually, it will deform only by your force. Actually, okay. See, different persons will hold the pan with different forces. Obviously, okay. So we will not hold the pan like that. Okay. Actually, हम उसको hook से उठाते हैं. Okay. एक बार में एक ही सैंपल रन करते हैं. एक बार में एक ही सैंपल रन होगा सर हर किसी में. Whether it's a auto sampler one or whether it's a auto loader one. Okay. See, there is some difference between a auto loader and a auto sampler. ऑटो लोडर में केवल एक आर्म होता है, उसमें केवल एक पैन रखा जाता है एंड यू विल गेट वन सैंपल इन दैट वन. वो अंदर लोड होएगा, सैंपल चलेगा, वापस बाहर आ जाएगा. इसमें ओके, बैलेंसिंग का कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि इतने सारे पैन्स है सैंपल तो एक में ही जाएगा हमारा. सॉरी मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड. मींस देयर आर सो मेनी पैन्स आर देयर ना. Yeah. बट वी पुट ओनली सैंपल इन ओनली वन. या मैम सी, ऑटो सैम्पलर का भैया, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑटो सैम्पलर इज एक्चुअली there is 25 pan का auto sampler. Okay, what you can do, you can tear all the 25 one first. सारे के सारे को पहले टेयर कर लो. ओके, टेयर कर लिया आपने. टेयर करने के बाद में आपने सब में सैंपल डालना. देन you have to program all the 25 samples. One by one हो जाएगी. One by one. Okay, yes, you have to program all the 25. Okay, हर किसी का आपने अलग अलग अगर प्रोग्राम लिखना है तो अलग कर सकते हैं. If you want same program in everyone, so you can program that same program to every sample also, and then you will press the start button.
after that you can go to your other work and you can do. Okay, what it will do, it will go load the first pan, उसमें सैंपल जो भी चलेगा वो चलेगा, बाहर निकालेगा, ठंडा होने का वेट करेगा, सेकंड वाले पैन को अंदर लेगा, उसका सैंपल शुरू करेगा. लाइकवाइज इट विल गो फॉर दोस 20. ओके, एक बार में एक ही होता है. एक होगा एक बार जैसे कि में. मैं- यस, ऑब्वियसली. कभी हमें सब पे सैंपल नहीं रखना, हम चाहते हैं कि 2 पैन में सैंपल रखना. हाँ, तो आप 2 रखिए. अच्छा, कोई उसकी No, 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 it is- imbalance नो नो है नो नो कुछ नो भी? नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट. Okay. मैम एक बार में एक ही सैंपल लोड होना है, हाँ. तो दैट्स व्हाई आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 25 रखिए, इट इज नॉट सब मैटर. It is only preparation basically. Sir, It's a इससे preparation, yeah. पहले हम baseline run करते हैं. No. See, no, that's why that our application manager was saying no. Baseline run केवल एक बार किया जाता है कैलिब्रेशन के टाइम पे. जब मैंने इसमें इंस्टॉल किया था, at that time I have run that baseline. Okay, baseline run is nothing but running a pan without sample. Okay, एक एम्प्टी पैन लिया, उसको लटकाया, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, फर्नेस को बंद किया एंड रूम टेम्परेचर टू 1200 डिग्री सेल्सियस जो मैक्सिमम टेम्परेचर. यस, ओके, वी विल सी दैट केवल खाली पैन रखने से कितना ड्रिफ्ट आ रहा है. दैट इज योर जीरो लाइन. Okay. 6 month में कर सकते हैं, फिर पर मतलब उस month की starting में कर सकते हैं. एक्चुअली ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि एक दिन में सैंपल कितने चल रहे हैं इसके ऊपर. ठीक है, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में ये वाला है, तो इनके हर दिन इतने सैंपल चलते हैं कि इनके पास में टाइम नहीं है करने का, ऑब्वियसली. ओके, तो ये 3 महीने में वो रन करते हैं और 6 महीने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कर देते हैं. ठीक है, और अगर डिपेंड करता है तो हो सकता है कि मैं 3 महीने में क्लीनिंग रन करने वो रन भी कर दूँ. यस, इट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, बट या हर कोई कंपनी या फिर हर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अपना अलग अलग शेड्यूल डिसाइड करता है. ओके, बट इन जनरल जो हम बोलते हैं कि 3 महीने में वेरिफिकेशन रन और 6 महीने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर. Advisable. ओके, ओके, आई एम डूइंग विद माय हैंड, यू डोंट डू इट. ओके, अगर आप कभी करना पड़ा तो आप करेंगे. ओके, सो दिस इज द सॉफ्टवेयर. आई विल जस्ट क्लोज इट एंड देन शो यू ऑल अगेन. Prios. ओके, जब आप पेट्रोल क्लिक ओपन करेंगे ये ऐसा आएगा. ओके, तो नीचे का जो ये ग्रीन लाइन है, इट इज शोइंग दैट इट इज कनेक्टेड टू विद द पीसी. ओके, अगर इसमें कनेक्टेड नहीं होगा तो दैट इट विल टर्न ग्रे. सो इधर यू डबल क्लिक ऑन दिस वन और यू कैन गो कनेक्ट. सो दिस साइड इट्स अ कंट्रोल पैनल. ये वाला साइड, यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं एंड द ग्राफ विल शो अराउंड हियर. ओके, सो सी, furnace is down right now. Okay, and if I want to tear one of the pan, let's say this one, we put it on one. Yeah, I go to auto sampler and this one, pan to front. तो जो 1 नंबर का पैन है वो आगे की ओर आ जाएगा. ओके, फॉर इजी लोडिंग. So this is platinum HT pan. Okay, this pan can go up to 1200 degrees. Okay, so what I will do, I will load the sample inside of this one and then we can run the sample. Okay, but before doing that, सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले इसको टेयर करना है. ओके, सो TGA इंस्ट्रूमेंट के माइक्रो बैलेंस को आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए जैसे आपके जो नॉर्मल जो पैन होता है, नॉर्मल जो तराजू होता है बिल्कुल वैसा. ओके, सो लाइक सी लाइक दिस. ओके, तो ये रेफरेंस साइड है और ये बैलेंस साइड है. ठीक है, तो रेफरेंस साइड पर एक ऐसा ही पैन जो हम रन करने वाले हैं, एक ऐसा ही पैन यहाँ पे अंदर लटका के रखा हुआ है. ओके, एंड इट इज क्लोज्ड. हम उसको कभी हाथ नहीं लगाते हैं, उसको हम कभी भी चेक करेंगे. ओके, सो इट इज ओनली फॉर द बैलेंस. ओके, अगर दोनों को बैलेंस करना है तो दोनों की तरफ सेम वेट होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे आपने एक बैलेंस रखा, यहाँ पे आपने एक पैन रखा हुआ है और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है. राइट नाउ अभी वहाँ पे कुछ नहीं है. अभी ऑब्वियसली जो ये वाला साइड है, जो रेफरेंस वाला साइड है, वो ऐसे झुका हुआ होगा. ओके, देन बट यू विल डू, यू विल लोड वन पैन इनसाइड ऑफ दिस वन, तो ये सीधा हो जाएगा ऐसे. नाउ इट इज बैलेंस्ड. ओके, सो इन दिस पोजीशन वी विल टेयर इट. तो अब ये रिकॉर्ड कर लेगा कि नाउ द वेट इज 0. ओके, देन हम पैन में वेट रखेंगे, अपना सैंपल रखेंगे एंड हम यहाँ से कमांड देंगे कि डी आप लोड हो जाए. देन उसको लोड कर देगा. ओके, नाउ बिकॉज देयर इज सम वेट ऑन द पैन,
So now what it will do like this. Okay. इस वाले पैन के अंदर में फर्नेस बंद हो गया. फर्नेस बंद होने के बाद में then we will start it. Okay. तो धीरे धीरे आप वेट धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेट लॉस होगा. जैसे जैसे वेट लॉस होगा टेम्परेचर के साथ साथ वो आपको ग्राफ में प्लॉट होगा. ठीक है. तो जैसे जैसे वेट लॉस हो रहा है तो ये नीचे झुका हुआ था धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा. ठीक है ना. तो आपका जो सैंपल है वो कितना अच्छे तरीके से बर्न होता है डिपेंडिंग अपॉन दैट इट विल गो फ्रॉम 100% to 0%. ओके. और इफ इट इज नॉट बर्न कंप्लीटली so it will go like 2% बच गया, 4% बच गया, कितना ही परसेंट बच गया. So it will it's a ash content or a residue you can say. Okay, it's a residue. Okay, so एक नंबर पे. Okay, so in this one because this is a auto sampler one, so आपको यहाँ पे position define करनी होगी. Okay, so we have defined the position as 1. Okay, so what we will do, tear pan. Okay, so it will take a round. First number वाले पैन को it will hand down to that hand down wire. Yes, it will go automatically. The only manual thing which you have to do is to put your sample inside the pan. Yes. You don't have to do anything in that. Okay, and now furnace is going up. Okay, furnace is going up, so environment will be closed inside this one. Okay, so then when it will get stabilized, so the tearing will happen, and after tearing, जैसे tearing खत्म हो जाएगा, furnace खुलेगा, ऑटो असेंबलर वहाँ जाएगा, उस पैन को वापस लेके आएगा. Okay, tear करने के बाद then you will put the sample inside. आप यहाँ से प्रोग्राम बनाओ, कमांड दो. हाँ, अभी टेयर हो रहा है ना. देखो यहाँ पे वेट लिखा हमारा. राइट नाउ इट इज शोइंग एज नेगेटिव 14.826. ओके, तो नेगेटिव 14 बिकॉज पहले टेयर हो रखा है. ओके, तो टेयरिंग इज डन 0.0. ओके, and one thing you can see something written as temperature difference over here. Okay, तो temperature difference क्यों है? जब आप यहाँ से हीट करने का कमांड देते हैं तो द फर्नेस विल गेट हीट. ठीक है ना. अब फर्नेस मान लीजिए 1000 डिग्री पे हीट हो गया. ओके, लेकिन सैंपल 1000 डिग्री पे हीट हुआ है कि नहीं, हाउ यू विल गेट टू नो. ओके, सो जो व्हाइट वाला जो थर्मोकपल है, ये वाला हैंडल वाली जो साथ लगा हुआ है, ये सैंपल थर्मोकपल. तो फर्नेस का थर्मोकपल और सैंपल के थर्मोकपल में जितना टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट इज दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज. ओके, एंड ये मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री तक हो सकता है. ओके, व्हेन यू आर गिविंग द कमांड टू हीट एट 1000 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली आप फर्नेस को कमांड दे रहे हो, सैंपल के थर्मोकपल को नहीं. ओके, तो मान लीजिए कि आपका सैंपल जो फर्नेस है वो 1000 डिग्री पे हीट हो गया. ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो थर्मोकपल वो वाला है, जो सैंपल वाला है, वो 1000 डिग्री पे पहुंचा कि नहीं. ठीक है, इट्स नॉट अ गारंटी ऑब्वियसली. ओके, सो आपको थोड़े टाइम में वेट करना पड़ता है. ओके, सो व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोग्राम, लाइक आपने इतने डिग्री से शुरू किया, लेट्स से 25 डिग्री से हमने शुरू किया, एंड वी आर गोइंग टू 1000 डिग्री सेल्सियस बाय 20 डिग्री रैंप और 10 डिग्री रैंप. ओके, आफ्टर दैट what I will do, generally what I will do, I will give a isothermal command for 1 minute. तो 1 मिनट तक 1000 डिग्री पे होल्ड रखते हैं ताकि वो जो थर्मोकपल है वहाँ तक हीट पहुँच जाए. ओके, अगर आपने ये वाला स्टेप आप नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको जनरली ऐसा देखने को मिले कि आपने बोला 1000 डिग्री पे हीट हुआ, बट वो 969 या 985 पे कट गया, क्योंकि फर्नेस तो पहुंच गया 1000 पे, बट सैंपल नहीं पहुंचा. ये जो ये टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है, ये सैंपल थर्मोकपल का रिकॉर्ड कर रहा है. एक्चुअली रिकॉर्ड ये फर्नेस का भी रहा है, बट आपको ये दिख रहा है. ओके, दीज ऑल कैलकुलेशन आर डूइंग इन बैकग्राउंड. ओके, सामने नहीं हो रहा है, बट ऐसा है. ओके, सो टेयरिंग इज हैपन नाउ. ओके, व्हाट वी विल डू, ओके, अगेन पैन टू फ्रंट, ऑफिस से उठाने के लिए. ओके, सो दिस इज द पैन. ओके, सो सी अभी मेरे को आदत पड़ी हुई है. ओके, सो आई कैन होल्ड इट और मैं डैमेज नहीं करूंगा, बट सी इफ आप अगर यहाँ से पकड़ रहे हैं
ओके, या ऊपर से पकड़ रहे हैं या फिर ऐसे पकड़ रहे हैं, तो देर इज अ चांस दैट यू कैन डिटोरिएट इट या डिस्टॉर्ट इट। ओके, तो ऑब्वियसली इसको पकड़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, दिस, बाय दिस थिंग यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी फोर्स ऑन दिस वन। ऐसे ही करके लोड करते हैं, ऐसे ही करके लोड करते हैं और ऐसे ही करके अनलोड करते हैं। नाउ अब हम कोई सैंपल लगाएंगे, तो सैंपल कौन सा लगाते हैं, हमारे पास में एक वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड है कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सलेट, आपको बताया भी था, वो हम लोड करते हैं। इससे एक्चुअली इससे पहले भी हमने कैल्शियम ऑक्सलेट ही लगाया था, तो देखो ना कैल्शियम ऑक्सलेट चल गया। ओके, सो जनरली पीजीए में वेट रहता है, मतलब वेट ऑब्वियसली जो मेजर होगा, ठीक है, तो हम अंदाजे से डाल देते हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ डीयू में ये ऐसा नहीं करते हैं, ये पहले वेट, ये पहले वे करते हैं कि हम कितना डाल रहे हैं, इसको भी वे करते हैं। ओके, बट ऑब्वियसली मैं डाल सकता हूँ ऐसे, मैं अगर कुछ गलत कर दूंगा तो कंपनी विल पे ऑब्वियसली। बट आपको नहीं करेगी, ठीक है। तो अंदाजन हमने कुछ ना कुछ वेट ले लिया एंड विल पुट इट ऑन वन पोजीशन। ओके, So the same position we have to put now. सॉरी, Same position we have to put now. हाँ, जहाँ जो पोजीशन हमने टेयर किया, ठीक है, number मतलब है। इस वाले ऑटो सैम्पलर में आपका ना पैन टेयर नहीं हो रहा है, पोजीशन टेयर हो रहा है, Okay, sir. ठीक है, इस पर्टिकुलर वाले में, बिकॉज इसमें 25 वाला है। जहाँ पे केवल सिंपल 1 वाला रहता है तो ऑब्वियसली उसमें एक ही रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो नाउ यू हैव टू लोड द सैंपल पैन। ओके, दिस वन, लोड सैंपल पैन। ओके, एंड जैसे कि वो सेशन में भी आपको बताया गया था, टीजीए शुड बी ऑलवेज ऑन एवीटी एक्चुअली, ठीक है, एंटी वाइब्रेशन टेबल होना चाहिए। ये अच्छा, ये काफ़ी अच्छा टेबल है, इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज अभी लैब में बहुत सारे लोग हैं तो दैट का थोड़ा बहुत नॉइज हो सकता है। ओके, सो वो पैन को लोड कर देगा। ओके, तो अभी जो हम कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज अ मैनुअल लोडिंग। ओके, व्हाट वी कैन डू, हम पहले सारा प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये अपने आप उसको लोड करेगा, ठीक है, लोड करेगा, फर्नेस बंद करेगा, काम शुरू करेगा। ठीक है, सो विल गो टू दिस वन, क्रिएट न्यू रन। यहाँ से क्रिएट न्यू रन, सैंपल का नाम लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। जी, कितना टाइम लगेगा? ऐसे में ऐसे का हाथ आ रहा है, ऐसे में हाँ 20 मिनट। पैन का ये मटेरियल जी, आपको पैन का मेटल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हाँ, मतलब देखिए ये क्यों है, जैसे जो आप पैन सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से वो उसको टेम्परेचर देगा आपको। फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे प्लेटिनम सेलेक्ट किया है तो आपको ये 1000 डिग्री डालने नहीं देगा। सॉरी, इक्विलिब्रेट कर रहे हैं 50 डिग्री पर, 50 डिग्री से शुरू करेंगे और 20 डिग्री रैम से 800 डिग्री तक जाएंगे। ओके, आपने ये प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम देने के बाद में यहाँ से ना 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 जो हीटिंग है, कंटिन्यूस हीटिंग, वो 20 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से होगी, 1 मिनट में 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर। ग्रेट, ठीक है। टाइम क्या, कुछ 1 मिनट के लिए हम इसको रन कर रहे हैं। टाइम देखो, टाइम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। 50 डिग्री पे आपसे आपने शुरू किया तो 50 से 800, तो 800 माइनस 50 डिवाइड बाय 20, दैट इज द टाइम। 1 घंटे में 5 हो गया ना वैसे। सर रूम टेम्परेचर से 800 तक करते हो 20 डिग्री के रेट में तो 40 मिनट। हम तो भाई 1 घंटे में 3 बार हो जाएगा। इस वाले नहीं सर, आप इसमें केवल हीटिंग का टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, आप डाउन टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहे। कूलिंग होने में भी टाइम लगेगा ना। डबल हो जाएगा। यस, ठीक है, फर्नेस बंद हो गया, फैन अंदर चला गया, सैंपल अंदर चला गया, स्टार्ट। कहाँ ओके, अभी ग्राफ आ जाएगा। स्टार्टेड। हाँ, थोड़ी देर यहाँ पे अगर आना चाहिए, टेम्परेचर, वेट परसेंटेज, डेरिवेटिव एंड जो भी है, ठीक है। अब जब ग्राफ आ जाएगा तो हम ग्राफ देखते हैं। नाउ विल मूव टू केस।
It's an old model. Okay. So this is this DSC is Q2000. Okay. ये भी टीए का ही है। ये भी ठीक है सर। ये डिस्कवरी से पुराना सीरीज है। ओके। सो जो पुराना सीरीज था जो क्यू सीरीज था, तो क्यू सीरीज में इट इज द हाईएस्ट मॉडल। इट इज इक्विवेलेंट टू जो अभी डीएससी आ रहे हैं, जो डीएससी जो हाईएस्ट मॉडल आता है, इसके इक्विवेलेंट है बिल्कुल पुराने मॉडल। ओके। सो एज पर द हार्डवेयर पार्ट ऑफ दिस वन, हार्डवेयर पार्ट इज कंसर्न, डीएससी में जो मेन हार्डवेयर है दैट इज डीएससी सेल। ओके। जो अभी आपको ओके दिस वन, तो ये वाला है, दिस इज डीएससी सेल। ओके। इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ सिल्वर, ये पूरा। ओके दिस वन। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला स्पॉट है, और जो ये वाला स्पॉट है, तो दिस इज रेफरेंस का स्पॉट। इन दिस यू विल पुट द एम्प्टी पैन एंड एम्प्टी लिड एज अ रेफरेंस। ओके। एंड इन दिस वन यू विल पुट द सैंपल। ओके। तो सैंपल आप प्रिपेयरिंग योर सैंपल, पॉलीमर सैंपल या मेटल का सैंपल, या जो सैंपल प्रिपरेशन के लिए वो पंचर वो पीछे है सर आपके। सैंपल प्रिपरेशन की 2.5 इंस्ट्रूमेंट के साथ में आती है ऑब्वियसली, और वो पीछे रखी हुई है। ठीक है, बहुत सैंपल प्रिपरेशन। ओके। सो ये सेल है, एंड जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये जो मेटल वाला जो ये चीज है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कूलर एक्चुअली। ओके। तो दिस इज द कूलर। ओके। विद एवरी डीएससी देयर विल बी सम कूलर। ओके। डिपेंडिंग अपॉन की मतलब जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है या यूनिवर्सिटी है, उसने कौन सा कूलर परचेज किया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। ओके। तो दिस इज RCS 90। ओके। RCS 90 इज रेफ्रिजरेटेड कूलिंग सिस्टम 90. 90 stands for it can go up to a negative temperature of -90. Okay. So हाँ, तो 3 टाइप के RCS आते हैं, RCS 40, 90 एंड 120. सो -40, -90, -120. उसके अलावा अगर किसी को और ज़्यादा नेगेटिव में जाना है, तो इट कैन तो लिक्विड नाइट्रोजन का पंप, LN2 पंप। ओके। विद LN2 पंप यू कैन गो अप टू टेम्परेचर ऑफ -156. ओके। तो -156 से, तो अगर कोई कूलर नहीं है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई कूलर नहीं है, तो देन देयर विल बी वन कूलर कॉल्ड एज FACS, फिन्ड एयर कूलिंग सिस्टम, दैट इज ओनली अ फैन। तो कूलिंग जो होगा वो नाइट्रोजन गैस से होगा और केवल फैन चलता रहेगा। ओके। सो अगर FACS है तो इसका जो रेंज रहेगा दैट इज फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 750 डिग्री सेल्सियस, देन इट कैन गो टू 750। अगर आप कूलर लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो पॉजिटिव रेंज है वो घट जाता है और नेगेटिव रेंज बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में बिकॉज ये -90 से जो शुरू होता है, तो इसका जो रेंज है दैट इज -90 टू 400, इस वाले पर्टिकुलर। ओके। सो ये जो ट्रांसफर लाइन है, यहाँ से जो आपके कंप्रेस गैसेज है वो अंदर आती है, कूलर इसको डीएससी के सेल को ठंडा करता है और वापस चले जाता है। ओके। इसका जो कूलिंग प्रोसेस है वो सेम बिल्कुल वैसा जैसा हमारा एसी होता है, जैसे एसी चलता है। कंप्रेसर है इसके अंदर। ठीक है। 2 कंप्रेसर है, एक ऊपर एक नीचे है। ठीक है। जो ऊपर वाला कंप्रेसर है इसमें सेम वही गैस है जो हमारे एसी वाले कंप्रेसर में होता है, R32 करके। ओके। सेकंड वाला जो कंप्रेसर होता है, जो पहला वाला जो कंप्रेसर है उसका काम है 0 डिग्री तक लेके जाना, और उसके जो नीचे का प्रोसेस जो कंप्रेसर है वो -90 तक लेके जाता है। ओके। नीचे वाले, सबसे नीचे वाले में कुछ 3 गैसेस का मिक्सचर है, दैट इज अ पेटेंटेड वन, आई डोंट नो। वो केवल जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहीं। ठीक है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज इट्स हायर मॉडल, तो इसमें ये जो आपका ये जो लोडिंग है, ठीक है, ये जो ये लिड ओपनिंग है ये ऑटोमेटिक है। तो एक ऐसा मॉडल आता है जिसमें आपको ये लिड खुद से ओपन करना होगा, खुद से सैंपल रखना होगा, तब चलाना होगा। ओके। एंड या और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फर्क है। ऑब्वियसली ये पुराना हो गया है। ओके। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट XP एक्चुअली। ओके। हाँ, XP पे चलता था, तो XP बंद हो गया। XP के बाद में 7 आया, 7 भी अब लगभग बंद होने के कगार पे है। एंड नाउ वी आर रनिंग इट विद सम पैचेस ऑन विंडोज 10 एंड 11। ओके। एंड इस साल से शायद ये भी खत्म हो गया, लाइक इट इज नाउ ऑब्सोलीट एक्चुअली। 2024 से इट इज ऑब्सोलीट। ओके। सो हाउ टू प्रोनाउंस, ओके, सॉरी, या What about heating system? हीटिंग सिस्टम सेम कंडक्टिविटी उसकी जैसे। ठीक है। बट क्योंकि वो सिल्वर का बना हुआ है, दैट्स व्हाई हम उसको ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम ऐसा ही है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसके फर्नेस को कंट्रोल करता है, पावर सप्लाई से पावर लेगा और इसके हीटर को सप्लाई करेगा, देन वो हीट। तो इसमें फर्नेस कहाँ है?
जो सेल है वही प्रोड्यूस ओके. सो द सॉफ्टवेयर ऑफ दैट वन एंड दिस वन इज डिफरेंट. ओके, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रायोस है, इसका सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज थर्मल एडवांटेज. ओके, थर्मल एडवांटेज इज द सॉफ्टवेयर. ओके, सो ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, उसमें कैसा है कि जब आप उसमें चल रहा होता है तो उसमें आप ऑटो एनालाइज कर सकते हो चलते हुए, लाइव एनालिसिस हो जाता है उसमें. ऐसे भी ग्राफ आना शुरू हो गया, ग्राफ आना शुरू हो चुका है, ठीक है ना. तो अभी जो ये ग्राफ आ रहा है ना, मैं एनालिसिस अभी कर सकता हूँ. इस वाले में इट इज नॉट देयर. पहले एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप इसकी दूसरी सॉफ्टवेयर में खोलेंगे तब एनालिसिस करेंगे. The calibration of the DSC includes 3 calibrations are there, okay, because this is a higher model, so इसमें 3 होते हैं. सबसे पहला is baseline calibration, as you see in the previous session. Baseline क्या है? Baseline is nothing but आपने कोई सैंपल लोड नहीं किया है, आपके सेल को हीट कर रहे हो रॉ टेम्परेचर पे, मतलब एक मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर से लेके मैक्सिमम टेम्परेचर तक. तो आपका सेल कैसे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है ना. जो हाई जो लोअर मॉडल है ना, उसमें पैन भी लोड नहीं करते ऐसे, ठीक है. इस वाले में क्या करेंगे, पहले पैन लोड नहीं करेंगे, पहले ऐसे ही चलेगा बिना किसी पैन के, फिर पैन लगा के चलेगा. ताकि सबसे पहले वो क्या करेगा, जब पैन नहीं है, जब ओनली सेल है, तो एक बेस लाइन उसको लेगा, दिस इज द बैक लाइन. देन आपने पैन लोड कर दिया एम्प्टी, ठीक है. पैन लोड करने के बाद में एक और रन चलाया, अब वो उसके भी लोड कर देगा. उसके पास में अब 2 बेस लाइन हो गए, एक्चुअली 2 बेस लाइन हो गए, ठीक है. हालांकि वो उन दोनों को कंबाइन करता है, ठीक है, बट एक्चुअली वो चलते 2 बेस लाइन में. देन जो तीसरा जो आपका जो जब सैंपल चलेगा तो उसमें आपको जो हीट फ्लो के जो चेंजेस मिलेंगे, इट इज ड्यू टू ओनली योर सैंपल, नॉट ड्यू टू सेल, नॉट ड्यू टू योर पैन, ओनली ड्यू टू सैंपल. So this is the most accurate DSC. Okay, so पहला is baseline calibration. Baseline calibration में वैसे होगा, एम्प्टी चलाया, एम्प्टी चलाने के बाद में इसके ऊपर में सफायर रखते हैं, सफायर लगी हो चला है, ठीक है. तो सफायर है वो किसको रिजर्वलेस करता है, पैन को, ठीक है, वो कर दिया. देन उसके बाद में इसका करेंगे टेम्परेचर कैलिब्रेशन. टेम्परेचर कैलिब्रेशन कैसे होगा, इसका इंडियम से चलना, लाइक इंडियम इज अ मेटल. ओके, तो इंडियम का मेल्टिंग पॉइंट इज 156.6. ओके, एंड द एंथैल्पी इज 28.69. 156.6 टेम्परेचर लाने के लिए आपको 28.69 जूल पर ग्राम का एनर्जी देना होगा. ओके, सो द टॉलरेंस लिमिट विल बी फॉर मेल्टिंग पॉइंट इट इज 0.1 प्लस और माइनस 0.1, और एंथैल्पी के लिए इट इज 28.69 प्लस और माइनस 2%. ओके, इसमें अब इसका ये सॉफ्टवेयर है ये वाला, ठीक है. दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट इथरनेट प्रोटोकॉल से चलते हैं. ओके, यूएसबी कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, हाँ, दोनों के बीच इथरनेट का वायर लगा हुआ है. उसको एक आईपी एड्रेस गिवन है, इंस्ट्रूमेंट के आईपी एड्रेस दे देते हैं, इसको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं, और तब चलाते हैं. फायदा, इंटरनेट का केबल अपने आप नहीं निकल सकता, आपके खींचने से भी नहीं. उसमें क्लिप ऑन होता है, आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली. वो जब क्लिप वो उसमें क्लिक साउंड आता है ना, जब तक कोई डेलिबरेटली नहीं निकालेगा तब तक निकलेगा नहीं, ठीक है. यूएसबी में या फिर जो दूसरे सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं उसमें किसी ने जल्दी से खींच दिया, निकल जाता है, ठीक है. तो उसकी वजह से हम यूज नहीं करते. ओके, सो एज सेम उसी सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे सारे सिग्नल आ रहे हैं. यहाँ पे आपका ग्राफ, यहाँ पे आपका प्रोसीजर आएगा, ये देखिए प्रोसीजर आ रहा है ये वाला. यहाँ पे ग्राफ आएगा, यहाँ से आप अपना मेथड प्रोग्राम करते हैं, एंड यहाँ से अपना एक्सपेरिमेंट कैलिब्रेशन वो करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कोई सैंपल चलाएंगे, ठीक है. तो सैंपल चलाने के लिए सबसे पहला आपने जो भी सैंपल यूज करना है, ठीक है, और उसको सैंपल प्रिपरेशन करने के लिए आपने जो भी पैन यूज करना है, ठीक है, बिल्कुल वही पैन और बिल्कुल वही लिड खाली आपको सबसे पहले रेफरेंस में रखना पड़ेगा. ओके, रेफरेंस कैन नॉट बी एम्प्टी ऑल द टाइम. इसमें हमेशा आपको एक पैन और एक लिड जिसमें आप सैंपल प्रिपेयर करने वाले हैं हमेशा होना चाहिए. ओके, अगर नहीं होगा, मान लीजिए अगर नहीं होता है तो आपको जो ग्राफ मिलने वाला है वो बहुत पटपटा ग्राफ आएगा, वो ग्राफ ही नहीं आएगा, ठीक है. बिकॉज डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री इज द टर्म. ओके, इट्स अ डिफरेंशियल स्कैनिंग, वो दोनों के बीच के डिफरेंस को स्कैन करता है. अगर आपने कुछ नहीं रखा तो डिफरेंस नहीं है. ओके, दैट. सो जो आपसे दूर है ये वाला साइड, ठीक है, जो आपसे दूर है, तो दैट इज द रेफरेंस साइड. ओके, यू हैव टू पुट द पैन एंड पुट इट इनसाइड लाइक दिस, ठीक है. देन वी हैव टू प्रिपेयर द सैंपल. ओके, ये सैंपल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ये इसके अंदर इंडियम है,
Okay, indium is the metal which is a reference, which is the CRM. Okay, certified reference metal is there. It's a metal. तो हमने इसका प्रिपेयर किया हुआ है. ओके, बट कैसे प्रिपेयर करते हैं आई विल शो इट. यहाँ पर ओके, अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, घर में सर वो दाल बनाने का पतीला होता है, आपका जो सैंपल पैन है ना वो बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, बिल्कुल वैसा ही. उसके अंदर आप सैंपल भरते हैं, देन उसका जो लिड है, उसके लिड दो टाइप के होते हैं. ओके, तो दिस इज द सैंपल पैन, इसके अंदर आप सैंपल भरेंगे, और दिस इज द लिड जिससे आप कवर करेंगे. ठीक है, तो ये लिड दो टाइप के होते हैं. एक्चुअली अभी सर के पास दूसरे टाइप का लिड है नहीं, वो खत्म हो गया है. ठीक है, तो ओके, तो लेमन लैंग्वेज में जैसे मैं आपको समझाऊँ तो ये बिल्कुल जैसे घर में पतीला होता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम दाल बनाते हैं. ओके, इसके अंदर मैं आपने सैंपल भरा, सैंपल भरने के बाद में आपने इसको लिड से कवर किया एंड देन क्रिम कर दिया. ठीक है, क्रिम करने का मतलब आप इसको क्रिम करते हैं ताकि ये बिल्कुल लॉक हो जाता है. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन सैंपल का नेचर एंड सैंपल कैसा है, उसका कटिंग कैसी हुई है या फिर कैसा है, उसके हिसाब से आप ये उसके हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि लिड कौन सा लगेगा. ठीक है, तो ये जो लिड, ये लिड कैसा है कि आपने इसके अंदर सैंपल भरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सैंपल कंप्रेसिबल है, पाउडर है या रबर है, कुछ ऐसा है जो इजीली कंप्रेसिबल हो जाता है. ठीक है, आपने वो सैंपल भरा, इसके ऊपर रखा ऐसे और क्रिम कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो लिड है ना, ये इसके अंदर चला जाएगा और उस सैंपल को दबा देगा, कंप्रेस कर देगा. ठीक है, तो सेकंड टाइप का जो लिड होता है वो कैसा होता है, वो होता है पतीले के ढक्कन की तरह, क्योंकि वो सरफेस पर है. ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि ये एप्लीकेशन कैसा है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में सैंपल ऐसा है जिसकी कटिंग आप ढंग से नहीं कर पा रहे, प्लास्टिक का मेटल टाइप का या कुछ भी ऐसा है, आप कितना ही काट लो लेकिन वो उतना छोटा नहीं कटेगा कि वो कंप्रेस हो जाए इससे. ठीक है ना, तो उस केस में हम वो वाला लिड यूज़ करते हैं. तो अगर हम वो वाला लिड यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम रेफरेंस पैन भी वैसा ही बनाएंगे. अभी हमने जो रेफरेंस बनाया हुआ है वो इसी पैन और इसी लिड का है. इफ वी आर यूजिंग दैट फ्लैट वाला लिड, देन वी हैव टू प्रिपेयर द रेफरेंस सैंपल विद दैट रेफरेंस वाला लिड. ओके, सो दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, बिकॉज दोनों का वेट डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है ना, बिकॉज इसका वेट कम है, उसका वेट ज़्यादा होगा. ठीक है, ऐसा. तो सैंपल वेइंग करेंगे तो टेयर ढक्कन को और इसको दोनों को करना है? नहीं, आपको इस वाले इंस्ट्रूमेंट में आपको एक्चुअली इसका वेट नहीं देना होता. दोनों चीज़ों का नहीं देना? दोनों का नहीं देना, आपको सिर्फ सैंपल का वेट लिखना है. तो इन दोनों को पहले रखेंगे, देन वी विल टेयर इट. आपने दोनों को रखा, टेयर किया, उसके बाद में सैंपल लगाया, बस. तो होगा कैसा, आपने सैंपल लिया, जैसे कि ये इंडियम है ना, देखो इंडियम जो है ना वो बहुत ही मेलिएबल मेटल है, बहुत आसानी से दब जाता है और बहुत आसानी से कट भी जाता है. देखो फॉर एग्जांपल आपने ऐसे किया इसको, इसके बाद में इसको मेजर करना है कि आपने कितना लिया है, इसके अंदर रखा. पाउडर फॉर्म में है तब भी आपको मेजर ही करना होगा. इसके ऊपर रखेंगे, क्रिम कर देंगे. ठीक है, क्रिम करने के लिए ये डाई है यहाँ. ठीक है, ये लोअर डाई है या अपर डाई है, इसको फॉर एग्जांपल. हाँ, इसको इसमें प्लेस करते हैं. ठीक है, और इससे प्रेस होता है. ठीक है, तो एक्चुअली ये वो काम मुझसे करते हैं. ठीक है, हाँ, ये काम इससे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. फॉर एग्जांपल दिस ऐसा है, वो होगा क्या है, वो दबा देंगे. प्रेस होता है. सैंपल इज प्रिपेयर्ड नाउ, उठाओ और रख दो. ठीक है, इसको नहीं रख रहे कि इसको हमने मेजरमेंट नहीं किया, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. सो लाइकवाइज वी हैव प्रिपेयर्ड द सैंपल. आपने इसको उठाया, यहाँ पे रखा,
ठीक है। सो एक्चुअली पैन का जो डायमीटर है ना, जो ओडी है और जो वो स्पॉट था, उन दोनों का ओडी बिल्कुल एक जैसे बराबर है, तो कॉन्साइड कर जाता है पूरा पूरा। तो मतलब इस चीज़ का चांस नहीं है कि आप उसे गलत रखो। गलत रखोगे तो आपको दिख जाएगा कि नीचे का स्पॉट दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको मतलब आपको ऐसे रखना है कि नीचे का स्पॉट नजर ना आए, नीचे का जो वो वाला जहाँ पे आप रख रहे हैं। अच्छा, तो ये वे नहीं किया ना जो हमने सैंपल ये नहीं ये वे किया हुआ है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था पहले से। अच्छा, जैसे मैंने वो इंडियन था ना, वो वे करना था, मतलब आपको वो वे करना है आपको, मुझे मालूम है ये 5.260 मिलीग्राम लिया है। ठीक है, तो उसके बाद में आप कंट्रोल में जाएंगे, लिड एंड क्लोज। ओके, नाउ इट इज क्लोज। नाउ अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो इंडियन का प्रोग्राम में हम एक्चुअली कैसे करते हैं, टीएससी में जो भी प्रोग्राम बनता है, ठीक है, और जो टीजे में प्रोग्राम बनता है, दोनों में हमेशा डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको याद होगा मैंने उसमें एक कमांड दिया था, इक्विलिब्रेट टू 50 देन हीट। ठीक है, टीजे में जनरली ऐसा नहीं करते। ठीक है, एम्बिएंट से भी नहीं करते, मतलब जिस टेम्परेचर पे है वैसे चालू कर दो। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो होता है ऐसा है कि अगर आपने कोई इक्विलिब्रेट टेम्परेचर दिया है ना, तो रूम टेम्परेचर से जहाँ से उसने शुरू किया है वहां तक, जहाँ तक वो जा रहा है स्टार्ट टेम्परेचर, उसके बीच का वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो अगर वहां पर कोई वेट लॉस हो रहा है तो आपको नजर नहीं आया, नजर नहीं आएगा, रिकॉर्ड नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं होगा वो। सो वो 100% से शुरू नहीं होगा, मे बी इट कैन स्टार्ट अप टू फ्रॉम 99 पॉइंट समथिंग और 98 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर टीजीए बाय 100%, you don't have to give that equilibrate का कमांड। ओके, लेकिन किसी सैंपल्स में ऐसा जरूरी होता है कि आपको करना पड़े। ओके, बट यू वांट कि नहीं मुझे यहीं से शुरू करना है और यहीं तक खत्म करना है। ओके, डीएससी में इट विल रिकॉर्ड दैट, द ओनली डिफरेंस इसमें इक्विलिब्रेट कर, इसमें आपको सेट टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, जो डीएससी का सेल का टेम्परेचर है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, द स्टैंड बाय, और आरसीएस का नेगेटिव रेट में। ओके, सो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे। सर हर मशीन का अलग होता है सेल का टेम्परेचर? सॉरी, नहीं हर डीएससी का 40 रहेगा, किसी का हाँ पर के एल पर नहीं सर। देखो मैं 30 पर ऐसा नहीं है, 30 पर रख सकता हूँ मैं 25 पे भी रख सकता हूँ, बट जनरली हमारे टीए में 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोड कर रहे हैं स्टैंडर्ड, टेस्ट इज कस्टम। ओके, यहाँ पे हमने सैंपल का नाम दिया, पैन का टाइप दिया, पैन का टाइप देना जरूरी है ऑब्वियसली, ये एल्यूमिनियम का पैन है। ठीक है, वेट कमेंट लिखना कुछ भी, एंड टेस्टिंग जो भी हमने डेटा नाम वगैरह लिखा है। और यहाँ पे आएगा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में कैसा है, 100 सबसे पहले 100 पे इक्विलिब्रेट होगा। ठीक है, यानी कि स्टार्ट टेम्परेचर इज 100, देन 10 डिग्री रैम्प से 200 तक जाएगा एंड मार्क एंड खत्म। रेट ऑफ हीटिंग नहीं है? है सर, रेट ऑफ हीटिंग यहाँ पे नहीं है? कहाँ पर दिया ना सर, 10 डिग्री। 10 डिग्री है। हाँ, ओके, सो एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, सो इस वाले में अभी ये किया, अभी ये स्टार्ट हो गया, रनिंग। ओके, सो अभी आपने क्योंकि क्या बोला है, इक्विलिब्रेटेड 100, तो 100 तक वो मैक्सिमम रैम्प रेट से जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 40 तक। ठीक है, 100 तक उसी रेट से जाएगा, 100 पे थोड़ी देर रुक जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रेट करना है ऑब्वियसली। ठीक है, देन 100 से 180 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, तब आपको इंडियम का पीक मिल रहा है, जहाँ पर भी आएगा, कहाँ पे आएगा 156.6। ठीक है, ओके, थोड़ा ग्राफ आ गया उसका, ये वाटर लॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि ये कितना लॉस हुआ है। अच्छा, 100 के आसपास इसलिए ना? टेंजेंट डालना पड़ेगा। हाँ मतलब देखिए इस वाले में क्या है ना, इसमें आप लाइव एनालिसिस कर सकते हो, कि इसमें आप कहीं से कहीं भी पकड़ सकते हो, उसमें ये वाली फैसिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से पकड़ना शुरुआत है तो मैं यहाँ से पूरी एनालिसिस कर सकता हूँ, पूरा का पूरा कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को देखना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, देखो ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। ठीक है ना, मुझे देखना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना वेट लॉस हुआ है। तो राइट क्लिक, एनालाइज वेट चेंज एंड एक्सेप्ट, 11.651%। ठीक है, और 1.468 mg का लॉस हो गया। ठीक है, तो टोटल हमने जितना वेट लिया था उसका 1.4 उसका इतना लॉस हो चुका है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल डेटा हमको जो देते हैं ये ऐसे ही मिलेगा डेटा आपको।
आपको मिलती है PDF कहाँ जा रही है? पूरे ग्राफ की, और आपको मिलता है पूरा एक्सेल का डेटा। आप प्लॉट कर सकते हैं उसको दूसरे सॉफ्टवेयर में, मतलब मैटलैब में या कहीं और जब भी आप प्लॉट करते जो हो। एनालिसिस तो नहीं आता मेरे पास। नहीं, इसका आप जो software होगा ना? जो आप एनालिसिस बोलोगे ना वो आपको निकाल के देगा। ये वैसे पूछता हूँ इनको, मतलब ये करने के लिए आपको ये वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जो ये ट्रेवर्स है ना, ये होना चाहिए आपके पास वो करने के लिए। मतलब एनालाइज करके देंगे ना हमें। हाँ, ऑब्वियसली आप उनको बोलोगे कि मुझे ये एनालिसिस चाहिए, तो आपको करके देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि जो ये वेट लॉस कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका ऑनसेट निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ तक डाऊंगा, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करता है ये आपके ऊपर, आप कहीं भी ले सकते हैं। एनालाइज ऑनसेट पॉइंट, ओके, एंड एक्सेप्ट। सो इट वाज स्टार्टेड एट 136, ओके। कहाँ पे जाके एंड हुआ हम वो भी ले सकते हैं, इस वाले ग्राफ का ऑन सेट या फिर एंड सेट, तो ये ग्राफ का एंड है। राइट क्लिक, एनालाइज, एंड सेट, ओके। स्टार्टेड फ्रॉम 136 एंड एंडेड एट 198.46। उस वाले इंस्ट्रूमेंट में एंड सेट नाम का कोई पॉइंट नहीं है, वो दोनों ऑन सेट। एक्चुअली ये ऑन सेट ही है, ग्राफ में उल्टा है, पर इसमें क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, इसमें नाम दे दिया अलग से एंड सेट, उसमें कोई एंड सेट नहीं है, उसमें दोनों ऑन सेट, नाम ऑन सेट है वो एंड सेट ही, लेकिन नाम ऑन सेट है, ठीक है। एक्चुअली ऑन सेट इज दैट पॉइंट जहां पे हमने जहां पे आपकी टाइमिंग मीट करो, ठीक है। वैसे हाँ, वहां से करो, देखो ये सेकंड वाला लॉस हो गया। अच्छा, आपने इसको बॉर्डर बताया बिकॉज़ इट इज कमिंग एट 100 रिसेटेड ना? नहीं, ये सर आया तो 136 पे है। हां, वाटर मतलब सबसे पहले वाटर ही निकलता है, वाटर के बॉलीवुड सबसे पहले 100 के आसपास ऐसी है तो लिक्विड आएगा सर। और कुछ होगा ना, जरूर नहीं। आप अगर आपको ये देखना ना कि क्या क्या निकला है, तो आपको इसको क्लब करना पड़ता है किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर से जो भी ब्लू गैस निकल रहा है उसको आप GCMS पे कनेक्ट कर दो या उस पर डाल दो, FTIR पे डाल दो, तो आपको एलिमेंट भी पता लग जाएगा और मास भी पता लग जाएगा कितना निकल रहा है, वो भी पता। जैसे कि आपने बोला BSc के लिए हमें पहले ये करना हाँ, पड़ता है, yes. अगर हम नहीं कर सकते, जैसे मेरा 1% हाँ। मैं ये नहीं कर सकती obviously, उसमें तो नैनो आपके BSc कर जी जी सकते जी। हैं। तो फिर मैं कैसे पता लगाऊं कि तो देखिए, हम जो बोल रहे हैं ना वो एक रफ आइडिया होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो देन आपको देना ही पड़ेगा ना, तब कोई तरीका नहीं है। अगर देखिए, अगर कोई भी मान लीजिए कि अगर कोई अननोन सैंपल है और आपको बेटर आपसे बोलता है कि भाई कुछ डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है, नाम नहीं पता, आपको एक टेक्निक है, फॉर एग्जांपल आपको गूगल पे मिल गया या किसी और एप्लीकेशन नोट्स में मिल गया, तो बहुत बढ़िया। नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो देन आपको करना ही पड़ेगा। आई कैन शो यू द अदर ग्राफ आल्सो। हेलो, ये ऐसा है, ठीक है। सर इसमें नीचे वाला एंडो है। हाँ, ठीक है। देखिए ये इस तरीके का ग्राफ आता है। सो दिस इज 100 से शुरू किया, 100 से आगे चला, जैसे ही 156 पे आया, नीचे पीक आई, ठीक है। अगर आपको इसको एनालिसिस करना है तो ये सिंबल ऊपर वाला, ये देखिए, ये इंटीग्रेटेड पीक लीनियर, ठीक है, या फिर ऑनसेट पॉइंट, ये ओके। तो एक पॉइंट यहाँ पे रखा, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, ऐसे सॉरी ये पीक पॉइंट है। और you can say like this, ऑनसेट पॉइंट ये रहा और साथ में अंतर। यहाँ पे ये दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलना पड़ता है आपको, ये यहाँ से ओपन होता है, विन UA, ठीक है, इसका नाम है विन यूनिवर्सल एनालिसिस। और उसमें ये ऑनसेट पॉइंट आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको 2 लिमिट दे देगा, आपको ग्राफ में रखना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और जब आप ग्राफ पे क्लिक करोगे तो तब वो आपको इस तरीके कर देगा, एनालाइज करके दे देगा। सिंपल आपको ये करना होता है। जैसे हम सर जो क्लीनिंग वाला था हमारा हाँ स्टेप, उसमें हाँ। जो हमारी एल्यूमिनियम क्रूसिबल होती है सेरेमिक वाली, हाँ। उसको हम 1:1 HNO3 और सॉल्यूशन बना के हीटिंग पे कर सकते हैं कर सकते हैं, बट मैम वो देखो एल्यूमिनियम वाला जो है ना वो बहुत कम यूज होता है, मतलब जो मैं कभी यूज नहीं करता उसको, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है
अगर उसके हुक में मतलब आपने बहुत कम भी फोर्स लगा दिया ना, देखो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है बट हमने कभी यूज नहीं किया, कभी यूज नहीं किया।